finally a young panel over here, and I'm going to ask the hot question that looms in everyone's mind. Is content creation empowering? Does it legitimately empower women? Is it something that gives you respect, financial, stability? Saloni, I'll start with you. It definitely gives you respect once you start earning money. As like Atishi ma'am was also saying कि अगर एक औरत के हाथ में पैसा आता है तभी वो इंडिपेंडेंट बन पाती है, वरना वो अपनी लाइफ के शुरुआत से लेकर एंड तक किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रह जाती है. तो ऑब्वियसली वंस यू हैव मनी इन योर हैंड, पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. And I also feel like this is one of the only professions where a woman feels safe, at least at her home maybe. Not online. I think online तो उतना ही hate मिल रहा है, वहाँ पर भी इतने threats मिल जाते हैं. तो safety की तो यहाँ पर भी issue है, but yeah, definitely there is money involved and you get the respect that you should have. Right, absolutely. Megha, another question for you. Is content creation now officially a career? Is that how people are looking at it right now? I mean, as far as you are earning money out of it, you are creating a living out of it, it should be a career, and it is at least a career for me because I am earning throughout of it. So I think, yeah, definitely yes. Absolutely. Let's take this conversation forward with Kanika now. Kanika, of course, content creators feel that it's a career. You guys are financially stable. You guys feel like you're getting respect. But what about the people around? You think they've convinced themselves to social media and content creation then being a profession? Yeah, actually content creation is a profession. But I'll say that कि इसमें luck भी बहुत बड़ा part play करता है. And as a ऑडियंस कई बार काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है हमारी लाइफ देख के कि दे आर सो हैप्पी, जो हम उनको दिखाते हैं. एक्चुअली आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर एंड आई लिव अलोन इन दिल्ली फ्रॉम past 4 years. एंड देन सम वुमेन गेट छोटे बच्चे जिनका अभी कॉलेज होने वाला होगा शुरू, एंड दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम मी दैट कि हाउ यू लिव अलोन इन नोएडा एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स. एंड they get motivated, but there are some people who think that my life is very happening and fake perception वो अपने mind में carry कर लेते हैं. And yeah, that's it. So, yeah. All right, I'll take this conversation forward with Jaspreet. Jaspreet, a lot of people believe that there are two people. One is the person creating content and the other person who's authentic. How do you keep your content real? The person, sorry? How do you keep your content real? How you keep your content? Real, authentic. Yeah, you. मेरी लिपस्टिक लग गई है माइक पे. Hi guys, thank you for having me here. It's my pleasure. And काफ़ी बड़े बड़े बंदे बैठे ने इत्थे ते सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी बेनती है कि सुन लो की कह रहे ने, अगले टाइम कट के आए हैं. ऑल्सो मैनू मैम ने क्वेश्चन किया है, मैंने थोड़ी डील विद माई पंजाबी राइट. मैम इज आस्किंग के रील और रियल में क्या फ़र्क है ना, कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करके चलते हैं. बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिटरली डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं पाते, क्योंकि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट नाउ, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, मे बी कल का मेरा कंटेंट है वो, तो ये रियल हो गया और वो रील हो गया. बट अगेन जब मैं उस रील को लिख रही होंगी तो उसको एग्जैजरेट करूँगी, क्योंकि मे बी वो इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुए होंगे जो मैंने उसमें डाल दिए होंगे. वो रूड भी हो सकता है, वो अग्रेसिव भी हो सकता है, वो पॉलिशिंग भी हो सकता है, बट वो एक रील निकल के आएगी जो लोगों को एंटरटेनिंग लगेगी. बट दैट इज़ नॉट द रियल साइड ऑफ कोर्स. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल, बट वी एक्सट्रैक्ट रील फ्रॉम द रियल. That's a very intelligent answer there. Saloni, I want to understand from you, of course, we've just touched upon the challenges. What are the challenges that you faced when you started off with content? I definitely had a few challenges, but I don't know, maybe आपको सिर्फ एक फ़ोन ही चाहिए होता है. मैं तो तब भी यही बोलती थी, मुझसे तब पूछते थे लोग कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की क्या. मेरा अपना मानना ये है कि लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके चलना नहीं चाहिए. मेरे पास रिसोर्सेज कम थी, बट हाँ दैट वाज माय रियलिटी. अब उसके साथ आप ये तो नहीं कंप्लेंट्स करना शुरू कर दोगे कि नहीं मेरे पास अच्छा वाला फ़ोन नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना सकती.
I started with what I had at that point of time and it didn't bother me at all. तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में आप कुछ ऐसे challenges face कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो एक फ़ोन लिया, एक कॉपी ली, एक पेन लिया और मैंने वीडियोस बनाई और वो चल गई. ऐसा नहीं, मैं अगर किसी की वीडियोस नहीं चल रही हैं या कोई कह रहा है कि मुझे ये चीज़ शुरू करनी है बट यार मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, ये नहीं है, मैं तो हाथ में फ़ोन पकड़ के बनाती थी. तो मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में उतने चैलेंजेस हैं. इसीलिए मुझे एक इकलौता यही फील्ड ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है, कि इसमें आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको इतना मैन पावर नहीं चाहिए कि अरे कोई मेरी वीडियो शूट कर दे, कोई मेरे लिए माइक पकड़ ले. ज़रूरत ही नहीं है. आप एक वन वुमन आर्मी होकर भी कुछ भी कर सकते हो इस फील्ड में. Alright, after producing thousands of videos and putting it on social media, what are the three, big advices that you would like to give to the future content creators? Do not enter into this profession just because you have seen someone get a million views. आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तभी करो. इस चीज़ के चाम में आकर मत करो. मतलब जब मैंने शुरू किया था मैंने ये सोच कर नहीं किया था कि एक दिन मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे या एक दिन मैं किसी को, जैसे आज यहाँ अवार्ड लेने बैठे हैं, इस चीज़ के लिए करूँगी. मुझे बस मन किया कि हाँ मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं और आई थिंक मेरे दोस्त इस चीज़ को सुनकर हंसते हैं, तो आई शुड जस्ट स्टार्ट. लेकिन आजकल जो है, क्योंकि आप अपने आसपास इतने लोगों को देखते हो कि सब लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, आप देखते हो कि अच्छा इसको सक्सेस मिल गई, तो लोग अपने वेल स्टैब्लिश्ड करियर्स को भी छोड़ देते हैं. तो जो एक ये चीज़ चल रही है कि नहीं 9 to 5 इज़ नॉट गुड, ये तो आपको छोड़ ही देना चाहिए, सब लोग एक ही चीज़ में थोड़े ना आ जाएंगे. अगर आप एकदम अपने लिए श्योर हो तभी आप इस फील्ड में एंटर करो. मैं तो किसी को ये एडवाइस नहीं देती हूँ कि अरे 9 to 5 बेकार है, आप ये छोड़ दो, एकदम अपने लिए कुछ करो. आप वो भी अपने लिए ही कर रहे हो. तो हाँ, अगर किसी को आना है तो बिल्कुल एकदम सोच कर आए, क्योंकि इस फील्ड के भी अपने इस टाइप के चैलेंजेस आ जाते हैं कि आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया, आपको मेंटल ब्लॉक कुछ हो गया कि नहीं आ पा रहा है कोई आइडिया, तो लोग इसमें भी बहुत प्रेशर्ड फील करते हैं कि अब और क्या नया बनाए. तो हो सकता है किसी के लिए ये फील्ड भी उतना ही एक्सपीरियंस ख़राब देने वाला हो जाए. तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं ये चैलेंजेस फेस, तो डेफिनेटली एंटर. So each to his own is definitely. the advice for the young content creators. Megha, the preconceived notion has been कि या तो आप engineer बनोगे या तो आप doctor. You four have of course broken that norm over there with your success and your content. Were your parents, were they supportive or did it take a little bit of time for them to adapt to your career choices? इस फील्ड में एंटर करने से पहले मेरे घर वालों का था कि आपको इंजीनियर बनना ही है. अच्छा, तो that आई was एम it. एन इंजीनियर, आई एम एन आर्किटेक्ट. बट माई पेरेंट्स हैज़ बीन सपोर्टिव टू मी थ्रू आउट, और उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि वीडियो नहीं डालना है या फिर कुछ करना नहीं है. दे वर वेरी सपोर्टिव, आई गेस राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. तभी से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन भी मेन स्टार्ट किया था, और मेरा आर्किटेक्चर का 5 ईयर जर्नी भी तभी से स्टार्ट हुआ था. तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल रहे थे. और एक चीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स को बोली थी कि मैं शायद आर्किटेक्ट तो बन जाऊंगी, लेकिन आर्किटेक्ट बन के काम नहीं करूंगी, मैं काम शायद कंटेंट क्रिएशन में ही करूंगी. तो उसके लिए भी मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और आज मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, बट मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जॉब कर रही हूँ या फिर कुछ, और इस चीज़ से मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Well, that's good to hear. Your 3 key takeaways of being in this industry, your advice to the new generation of content creators. आई थिंक इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, और अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो यू जस्ट हैव टू बी रियल. कभी भी किसी और को देख के कुछ करने का कोशिश नहीं करना चाहिए. पहली बात तो अगर आपको कोई कंटेंट बनाना है तो बी रियल, जैसा भी आपको लगता है जो आपको बनाना है वो बनाओ. एंड बाकी जो सब चलता आ रहा है, क्वालिटी कंटेंट, ये सब चीज़ें तो है ही जो आपको पोस्ट करना चाहिए. Right, absolutely. Kanika, I'm going to ask you a similar question over there. I'm sure there must be people around you who must have said, what is she doing? Why has she started this? Where is this going to go? I'm sure you must have been bombarded with those questions. How did you deal with that? एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरे साथ मेरे अराउंड सारे सपोर्टिव लोग थे, इवन माई फैमिली, माई रिलेटिव्स ऑल्सो. और जब मैंने वीडियो व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करा था तो तब लाइक 100 to 100 व्यूज़ आते थे. देन ऑल्सो माई फैमिली यूज़ टू वॉच इट एंड दे यूज़ टू मोटिवेट मी कि दैट अच्छा कर रही है, अच्छा करते रहे, ऐसे करते रहे. एंड देन धीरे धीरे करके अभी तो वो सब बहुत खुश हैं. तो मैंने तो ऐसा कुछ चैलेंज फेस नहीं करा अपनी फैमिली से, रिलेटिव से या फ्रेंड से. सो
yeah, उसका Okay, but it's good to know that Yeah. people are open to the idea of content creation being a full-time job. Jasprit, I'm going to take this conversation forward with you. You know, if you could also give us a small anecdote on the most stressful moments in you know, being in this industry, whether that's internet bullies or producing content. There's this thing that, you know, when you become famous, people just want more and more content. Sometimes that creative flair does not come. So how do you deal with that stress? समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने किसी और पर्सपेक्टिव से चीज़ें बोली होती हैं और रिप्रेजेंट की होती हैं और वो किसी और मैसेज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है. तो दैट टाइम क्रिटिसिजम्स, क्रिटिक्स और ये जो आप नेगेटिव हेटर्स के कमेंट्स, दैट कम्स इनटू पिक्चर, है ना. तो दैट इज़ ऑल योर कॉल कि आप उसको किस तरीके से लेते हो. समटाइम्स पीपल टेक वीडियो डाउन या फिर कमेंट्स ऑफ कर देते हैं या फिर कुछ भी उसका एक रिप्लाई स्टोरी में डाल देते हैं. बट मेरे केस में आई डोंट गिव अ शिट. मैं नहीं देखती कि कौन है, क्या बोल रहा है. मेरे को काम देने से मतलब है. अगर मैंने आज का अपना रिस्पॉन्सिबली काम किया है, वीडियो डाला है, लोग एंटरटेन हुए हैं, आई एम हैप्पी. नेक्स्ट डे द साइकिल रीबिगन्स. तो इस तरीके से मेरा चलता है. एंड what is stressful is actually giving the quality content. जब brand collabs या campaign वगैरह आए होते हैं, उनमें क्या होता है कि हमें कल से better करना होता है. Brand will come when you will give engagement on those videos. तो that is stressful. वो उसमें कई बार चीज़ें चली जाती हैं कि हाँ ये डालें, वो करें, तो उसमें एक competition आ जाता है खुद के साथ. You know, it's interesting you've spoken about collaborations. What is the thought process behind choosing a brand, being involved with them? See, if your content is quality, audience is cream, then definitely आपके brands भी top notch होने चाहिए उस हिसाब से. So depends कि आप किस तरीके का quality content deliver कर रहे हो. And again, brands भी वैसे ही आगे से pop up होते हैं, तो it goes parallel with your content. All right, okay, Saloni, taking that conversation forward with you, what has been the most stressful moment in this industry and how have you in fact dealt with the bullies on social media who are usually anonymous? It would be wrong if I say कि मैं कभी इस चीज़ से बॉदर नहीं हुई. स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता था व्हेन आई यूज्ड टू डू पॉलिटिकल सटायर एंड ऑल. तो तब तो मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर तरफ से आपको गालियाँ पड़ रही होती थी कि आपको इस पार्टी ने पैसे दिए, आपको इसने पैसा दिया है, ये हुआ है, और आप सिर्फ घर बैठ के रिग्रेट कर रहे हो कि यार गालियाँ भी खा रहे हैं और पैसे तो किसी ने नहीं दिए, तो इससे तो मिल ही जाने चाहिए थे. तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम मुझे ऐसा लगा कि क्या, जैसे अभी इन्होंने बोला कि मैं कमेंट्स ऑफ कर लूँ या वीडियो हटा दूँ, बट फिर आप एक पॉइंट पर थोड़े सेल्फिश होकर ये सोच लेते हो कि वो गाली भी दे रहे हैं तो आपके वीडियो पर तो एंगेजमेंट आ रही है ना, और 4 लोग देख रहे हैं, उन 4 में से शायद 3 को समझ आ जाएगा कि ये किस पर्सपेक्टिव से बोल रही है. तो स्टार्टिंग में होता था मुझे बॉदर थोड़ा, लेकिन अब वही हम थोड़ा चिकना घड़ा टाइप हो चुके कि आप बोलो क्या बोलना है, हमें जो बोलना है हम वो बोलेंगे. Let the haters hate. हाँ, अब बॉदर नहीं करता. अब आई थिंक प्रेज करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं कमेंट्स में, तो वो कमेंट्स दिखते ही नहीं है जहाँ आपको गालियाँ पड़ रही हैं. Megha, your comments on that front? Do you just ignore the bullies or how do you deal with it? I think there are 2 ways to, tackle the situation. First is ignore as much as you can. Another would be go to your settings, and there is a feature called, hide comments which hold specific words. तो मैंने तो खूब सारे words का list बना रखा है और लोग वो words comment कर ही नहीं सकते हैं. तो आधी चीज़ें तो वहीं से filter out हो जाती हैं और उसके बाद मैं नहीं देखती हूँ इतना comments वगैरह जो लोग कर रहे होते हैं. Again, engagement आ रही है तो चल रहा है. Kanika, quick question for you. Top 3 content creators. Who do you watch the most? I watch a lot of them, but ऐसे दिमाग में आई अभी. Okay, I we'll can't. ask the rest. Megha, what about you? I think Kusha Kapila, Purav Jha, and third one, I think that should be the first one. That is me. मैं अपना content बहुत rewatch करती हूँ, बहुत ज़्यादा. Self-obsession is fine. I support that. Saloni, what about you? Top 3.
डेफिनेटली पूरब, अभी तो उसका गेम अलग ही लीग पर जा चुका है. वो जितनी मेहनत करके अपनी वीडियोस बना रहे हैं, हम तो उसका 1/10 भी नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है. तो डेफिनेटली हिम. और मुझे पर्सनली, मैं बनाती कॉमेडी वीडियोस हूँ, बट मैं कॉमेडी वीडियोस देखना उतना पसंद नहीं करती. मुझे कुकिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं रूटेड इन स्पाइस करके एक है, उनकी वीडियोस देखती हूँ, और एक कार्मेन इन द गार्डन. मतलब All मैं the अलग foodies, all the उधर जा foodies. चुकी हूँ. Take notes over here. Jaspreet, what about you? आई थिंक बहुत अनफेयर हो जाएगा अगर मैं कुछ टॉप 3 में नाम ले लूँगी. देर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो 6, 7, 8, 10 साल से काम कर रहे हैं और वो किसी हाइट पे पहुँचे हैं, और मैं उनको नाम दे दूँ ये 1, 2, 3 फॉर मी. नो, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी ऑडियंस है, और सब अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं. मतलब आई रियली लर्न बहुत कुछ बहुत सारे क्रिएटर्स से. तो कोई भी एक क्रिएटर पिक करना मेरे लिए बहुत औखा है. एंड यस, सीखना है तो डेफिनेटली अपनी वीडियोस देखो कि कहाँ तुम लैग कर रहे हो. तो आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ जसप्रीत देओरा. Okay, I'm going to take quick जसप्रीत देओरा okay. वीडियोस देख दिया मैं ज़्यादा. I'm going to take quick responses from all of you. What is that one message that you want to put out to the future content creators? Starting with you, Kanika. सो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप लोग स्टार्ट करो. इवन इफ़ यू आर डूइंग जॉब और कॉलेज और स्टडिंग, है ना, टाइम नहीं है फिर भी टाइम निकालो, धीरे धीरे करके स्टार्ट करो, क्योंकि बाद में ऐसा लगता है कि काश हम उस टाइम पे स्टार्ट कर लिया होता हमने, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे होते. तो इसलिए इफ़ यू हैव, मतलब टाइम निकालो उस चीज़ के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में. एंड या दैट्स इट. Megha? आई थिंक किसी से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हो और अगर आप वहाँ पे भी डर रहे हो, और उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, यहाँ भी ट्रॉल्स और बुली से डर रहे हो और सोचते हो कि नहीं मैं तो कंटेंट नहीं बनाऊँगी, मेरे को तो ऐसा ऐसा इसने बोला, तो आप ही शायद फिर फूल लगोगे इसमें. तो किसी से भी कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है. 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती है. हेट, लव, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड मिलेगा ही आपको. Saloni, quick thoughts, not just to the junior lot, but anyone and everyone can create content. I think it would only be, do not feel pressurized and just start with what you have. I'll leave the last word to you, Jaspreet. आई थिंक 5 मिनट देने शुरू करो अपने आप ਨੂੰ. मैनिफेस्ट अराउंड द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ. कोई फ्लो बनाओ, स्टॉक रेडी करो, बस अपने साथ रहना सीखो थोड़ी देर ना, तो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट. All right, thank you so much. This is, of course, Megha Sukhija, Saloni Gaur, Jaspreet Kaur Deora, and Kanika Devrani, who shared their thoughts on content creation. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.